کہ اگر آپ کی انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے, بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے, ایکسپورٹس گر رہی ہیں, باہر سے جو دولت ریمیٹنسز آنی تھی ان کی وہ ڈراپ ہو گئی ہیں, تو کدھر سے پاکستان کے پاس پیسہ آئے گا یہ قرضے یہ جو لے رہے ہیں اور قرضے؟ کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں کہ اگر ہم نے اس ملک کو معاشی طور پہ ٹھیک کرنا ہے تو یہ ایک بڑی, یہ ساری اوورال پکچر کے اندر جس کے اندر قانون کی حکمرانی آنی پڑے گی, جس کی وجہ سے انویسٹر آئے گا پاکستان میں, اور پھر نہ ہی ڈیموکریسی آ سکتی ہے. ڈیموکریسی اور رول آف لا ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آپ اگر الیکشن کروا دیں ایک ملک کے اندر جدھر رول آف لا نہیں ہے, جمہوریت آ ہی نہیں سکتی. جو طاقتور ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس 2 نمبر پیسہ, وہ اوپر آ جائے گا. کیسے مقابلہ کرے گا ایک آدمی, پڑھے لکھے لوگ کیسے مقابلہ کریں گے اس کا جس کے پاس مسل بھی ہے, اس کے پاس جو سندھ کے اندر, آج مجھے بتائیں سندھ کے اندر کون سی جمہوریت ہے جو ان کے یہ پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے؟ 15% لوکل گورنمنٹ میں لوگ کھڑے ہی نہیں ہوئے کیونکہ ان کے اوپر کیسز کر کے FIR کر کے ان کو ان اپوز جتا دیا 15%. باقیوں کے پاس جو الیکشن لڑنے جاتا ہے وہاں اس کے اوپر FIR کٹ جاتی ہے. میرے اوپر 16 FIR کاٹ دی ہے, وہ تو چھوڑے اب دہشت گردی کا کیس کر دیا. تو بیچارے عام لوگوں کا کیا ہوتا ہوگا؟ مجھے یہ بتائے کہ میرے پاس تو پھر بھی میں ایک, چلے وہ اللہ نے کرنا تھا کہ کل قوم ساری سڑکوں پہ آ گئی رات کو 2 بجے 3 بجے, نہیں تو لیکن میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں اگر عام ایک شہری پاکستانی ہوتا, میں شہباز گل ہوتا, تو ابھی تک انہوں نے مجھے اٹھا کے وہ جیل میں جا کے اسی طرح پھینٹا لگانا تھا جو اس بیچارے سے کیا. اور کس سے نہیں, بس ایک منٹ بس کرو, سن لو. میں صرف آپ کو یہ میرا مقصد آپ کو سمجھانے کا ہے کہ ایک عام آدمی پاکستان میں جس دن ہمارا قانون اس کو تحفظ دے گا کہ پہلے تو ڈریں گے لوگ اس طرح کا پرچہ کرنے کے لیے, جو ایسا پرچہ کرے گا دہشت گردی کا اس کے اوپر سوالات پہلے عدالت پوچھے گی کہ تمہاری جرت کیسے پڑی, کیوں نہیں اس طرح ہوتا. میں برطانیہ میں کتنے 20-30 سال دیکھا, کیوں کسی کے اوپر اس طرح نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہاں کی عدالتیں تکڑی ہیں, وہ طاقتور کے بوجھ لیتی ہیں, کھڑی ہو جاتی ہیں انصاف کے لیے. جرت نہیں ہوتی گورنمنٹ کی اس طرح کی چیزیں کرنی. وہاں کوئی بھی طاقتور, وہاں کوئی اسٹیبلشمنٹ کی جرت نہیں ہوتی کہ لوگوں کے حقوق کے اوپر اس طرح ان کو اسائیڈ کر کے, ان کو سیٹ اسائیڈ کر کے ان کے اوپر کرے جو شہباز گل سے ہوا ہے. اور کتنے شہباز گل ہیں پاکستان میں جن کی طاقت نہیں, ان سے آپ یہ کریں, اور جو تھوڑا سا طاقتور فضل الرحمان ٹائپ کہے کہ میں 10,000 لوگ ہی لاؤں گا, اس کو آپ ہاتھ ہی نہ لگائیں, وہ جو مرضی کہتے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جمہوریت تب آتی ہے جب ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے. لیول پلینگ فیلڈ رول آف لا آتا ہے اس ملک کی عدالتوں سے. جب عدالتیں انفورس کرتی ہیں رول آف لا, وہ الیکشنز میں حقیقی جمہوریت آتی ہے. اگر آپ کا رول آف لا نہیں ہے, آپ الیکشنز کروائیں گے تو اس طرح کے کرمنلز اسمبلی میں آتے ہیں. میرے دوست اعتزاز, میرے ہمسائے اعتزاز حسن ایک اور بات کی کہ مجھے مفاہمت کرنی چاہیے. آصف زرداری کا انہوں نے نام لیا. میں اب اس کا جواب صرف اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ سیرت نبی پڑھیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں, کوئی دنیا کی تاریخ میں ان سے عظیم انسان نہیں آیا, نہ آ سکتا. لیکن ان سے یہ بھی یاد رکھیں, ان سے زیادہ رحم دل انسان کوئی نہیں تھا.
रहमत लिल आलमीन थे, सारे इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। लेकिन अच्छा, फतह मक्का के बाद सबको माफ कर दिया, वो लोग जिन्होंने इनके ऊपर जुल्म किया था। लेकिन जब उनको कोई कहा कि जनाब कुरैश की एक लड़की ने चोरी की है, तो इसको आप जरा नजरसानी करें, तो उन्होंने तब कहा, दो चीजें कहीं मैं ये चाहता हूं कि ये जब मुझे बार बार कहते हैं जी इनसे आप में तकब्बर बड़ा है, आप इनसे मुफाहमत कर लें, आप अंडरस्टैंडिंग कर लें। मैं हमेशा ये आप बताता हूं कि जो रहमतुल आलमीन थे, उन्होंने हर चीज पे नजरिए के ऊपर काफर के खिलाफ नजरिया फर्क था उनका, उनके ऊपर जुल्म हुए थे, उन्होंने वो भी माफ कर दिए। लेकिन जब उनको कहा कि करप्शन या चोरी के ऊपर कुरैश की लड़की को माफ करो, तो उन्होंने कहा कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, जब बड़ा चोरी करता था उसको छोड़ देते थे, छोटे चोर को पकड़ते थे। देखिए, और कहा कि मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो उसको सजा मिलेगी। ये क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जब एक माशरे के अंदर आप चोरी को, करप्शन को एक्सेप्टेबल बना देते हैं, आप माशरा खत्म कर देते हैं। माशरे की बुनियाद रखी जाती है कुरान की आयत में, अमर बिल मारूफ, तुम अच्छाई के साथ खड़े होते और बुराई के खिलाफ जहाद करते हो। माशरा लड़ता है करप्शन के अगेंस्ट। मैं ये कह के लोगों को थक गया हूं। आप अगर एक बड़े बड़े चोर वो नैब जा रहे हैं तो आप फूल फेंक रहे हैं उसके ऊपर, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं अपने यूथ को, अपनी आवाम को? आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि चोरी बुरी चीज ही नहीं है। मुझे कह जी वो हमारे सहाफियों ने कहा कि देखें जब इमरान खान को भी अब वो उन्होंने तकरीर करने से मना कर दिया, तो नवाज शरीफ को भी कर दिया। नवाज शरीफ को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की तफ्तीश के बाद, जब उसकी कोरोना जो पैनामा पेपर्स के अंदर प्रॉपर्टीज अरबों रुपए की पकड़ी गई, उसके ऊपर तफ्तीश के बाद उसको डिस्क्वालीफाई किया और सजा दी। मुझे किस चीज पे कह रहे हैं कि जी आपने वो मैजिस्ट्रेट को कह दिया कि वो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और आईजी और डीआईजी उसके ऊपर कह रहे हैं मेरा बंद कर दिया, और वो एक ही है। जिस मुल्क के अंदर आपके बड़े बड़े सहाफी ये कहते हैं, इसका मतलब चुप प्लीज करके सुनो। जब आपके बड़े बड़े सहाफी ये कहते हैं, माशरे के अंदर क्या पैगाम जाता है कि कोई चोरी बुरी चीज, करप्शन बुरी चीज नहीं है। आपके घर में कोई डाका मारे, क्या आप कहेंगे कि उसके साथ मुफाहमत करो, उसके आके बैठो और आप बातचीत करो? आप कहेंगे उसको जेल में डालो। तो करप्शन तो मुल्क के ऊपर डाका मारा जाता है, तो आप उसको कह रहे हैं कि नहीं जी इनसे बैठ के करो। तो मैं सिर्फ इस चीज के ऊपर, क्योंकि मैं ज्यादातर तो अपने हमसाया एतजाज आसन से सब चीज से एग्री करता हूं, लेकिन इधर मेरे दो दीन के ऊपर तो खैर हमारा मुख्तलिफ व्यूज हैं, लेकिन इसके ऊपर कि आप हर किसी से कॉम्प्रोमाइज, पॉलिटिक्स होती है आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, लेकिन जिस वक्त आप करप्शन से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जनरल मुशर्रफ ने, जो बिल्कुल सलमान राजा ठीक कह रहा है, वो जो एनआरओ दिया था, कभी किसी ने एस्टिमेट किया है कि उसका इस मुल्क को कितना बड़ा नुकसान हुआ, कि किस तरह करप्शन के दरवाजे खुले, कितना मुल्क पीछे गया। मुझे जब गवर्नमेंट में 4 गुना ज्यादा कर्जा, हमारा नेशनल डेट बढ़ी 6 ट्रिलियन से पहुंच गई 30 ट्रिलियन पे। हमने जो पहला पैसा इकट्ठा किया, टैक्स में आधा चला गया उनके लिए हुए कर्जों की किस्तों पे, तो मुल्क किधर से चलाना था? करप्शन एक माशरा लड़ता है, माशरा उसको अनएक्सेप्टेबल करता है। अदालतें हमारी, इनकी सबसे बड़ी ड्यूटी ये होती है कि जो बड़ी करप्शन है और जो सबसे मुश्किल है, जो व्हाइट कॉलर क्राइम जिसे कहते हैं, जब तक एक माशरा व्हाइट कॉलर क्राइम का मुकाबला नहीं करता, वहां खुशहाली नहीं आती। और आप स्विट्जरलैंड की इसलिए मैं मिसाल देता हूं, जब वो रूल ऑफ लॉ की इंडेक्स की बात करते हैं कि 99.9% है वहां, और खुशहाली भी दुनिया में सबसे ज्यादा है, वसाइल ना होने के बराबर हैं, वो इसलिए कि उस माशरे के अंदर इंसाफ है। मैं आखिर में अपनी बात ख़त्म करता हूँ, कहते कि जो सबसे बड़ी रुकावट है
ताकतवर को कानून के नीचे लाने की वो सबसे बड़ी जो रुकावट है वो खौफ है। लोग डरते हैं, माफियाज होते हैं ताकतवर, वो आपको डराते हैं, धमकाते हैं। लोगों को डर होता है अपनी जान खोने का, लोगों को डर होता है मेरा रोजगार चला जाएगा, लोगों को डर होता है कि जनाब मुझे जलील कर देंगे टीवी के ऊपर और मीडिया पे। मेरी आखिरी पॉइंट ये है कि जिस वक्त एक कौम ये जो खौफ का बुत है ये तोड़ देती है और वो खड़ी हो जाती है, जब वो अपने आप को आजाद कर लेती है इस खौफ से, तो फिर अदलिया भी उस कौम के सामने इंश्योर करती है कि जस्टिस हो, क्योंकि जो डर होगा कौम खड़ी हो जाएगी। जो बड़ी अच्छी बात की सलमान ने यह भी कि जब मार्शल लॉ लगे तो लोग सड़कों पर निकले ही नहीं भाई, आराम से चुप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया किसी ने कानून तोड़ा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारा मुल्क, ये बहुत बड़ा अल्लाह ने करम किया हमारे मुल्क पे कि हमारे लोगों को बेदार कर दिया है, शऊर आ गया हमारे लोगों में, चेंज हो गया है। कभी मैंने पाकिस्तानी कौम के अंदर इस तरह की बेदारी नहीं देखी। और मुझे जो सबसे ज़्यादा इस वक्त एक मेरे दिल में खुशी ये है कि हर चीज़, ये जो बुरी चीज़ें हो रही हैं ये मीडिया के ऊपर, ये सोशल मीडिया के, उनके लोगों को दबा रहे हैं, टेलीफोन जा रहे हैं, कोई तो लिखता है कि हम तुम्हें ये कर देंगे, अननोन नंबर से टेलीफोन जा रहे हैं, हम एजेंसी से कॉल कर रहे हैं, आपने ये नहीं कहना वो नहीं कहना, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं।